गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन टूडेज वीडियो आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। आई विल ट्राई टू कवर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड वन इम्पॉर्टेंट स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज। सिर्फ आज के वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने की, सिंस मैनी क्लाइंट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड कुछ बाहर की कंट्रीज़ के मेंबर्स भी है। सो इट विल बी कंफर्टेबल, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलूँगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी और इन बोथ लैंग्वेजेस आई शुड कंटिन्यू माई वीडियोज़। सो प्लीज़ डू कमेंट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। we will check out where nifty closed today. Nifty spot closed around 17,233. So simple, as per price action here we can see open, high, low and close. So nifty spot today closed around 17,233. Yesterday low of on spot nifty was 16,833 and today's low was 17,161. So it was higher low, and yesterday high was 17,112 and today's high was 17,250. So higher high. So as per price action, it's making higher highs and higher lows, which is positive. Again, on just basis of price action we can't take any decision, so we will make one trend line, and according to trend line we will find where resistance is coming. So I am just connecting highs, and by connecting highs here we come to conclusion that our resistance line is 17,400 as per trend line. So as per trend line, spot nifty resistance comes around 17,400 levels. I am talking about spot nifty. ये मैं spot nifty की बात कर रहा हूँ. As per trend line, spot nifty resistance comes around 17,400 level, and as per price action, spot nifty is making higher highs and higher lows since 2 days. Yesterday it made high of 17,112 and today it made high of 17,250, and yesterday's low and today's low was 17,161 and yesterday low was 16,833. So today we make a higher low. So as per price action it's positive, and as per trend line we will discuss on various parameters. It's just an one point of discussion that we are discussing about right now. So as per trend line, spot nifty resistance is around 17,400 levels. Let's come to another parameter. So what's my another parameter here I would like to discuss about is as per, look, here nifty made an high. Okay, after that here it made a low, again it made a high. This high was lower than this high, again we made an lower low. This low was lower than this low, again we made an high. So again this high was lower than this high, and again we made an low, like this. And this is if continues, like for example 17,400, here we find that level 17,400 का लेवल अपन ने निकाला था, जो ये एक लोअर हाइज लगा रहा है। देखो आप देखो, मैं दोनों लैंग्वेजेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने एक लो लगाया, फिर ये जो हाई लगाया, वो ये जो हाई था प्रीवियस हाई से लोअर हाई था। सो आप समझ सकते हो कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज लग रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज लग रहा है। तो ये ट्रेंड कब चेंज होगा? ये ट्रेंड तब चेंज होगा जब एक्चुअली 17,400 तो स्पॉट निफ्टी का रेजिस्टेंस है, लेकिन दिस ट्रेंड विल चेंज ओनली इफ़ वी क्लोज अबव दिस लेवल 17,640. इट कम्स अराउंड दिस, ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देंगे ना आपने। if you will close around above this level 17,640, then only the trend will change, else the 17,400 is the immediate resistance on spot nifty. Okay,
And one more thing I want to discuss about is how moving averages are working for spot nifty. So let's take an exponential moving average of 50 days and 200 days of last 2 years. So here you can see, आप यहाँ देख सकते हो कि 50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 17,347 एंड 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो है 16,330. सो यू कैन सी 200 डेज EMA इज इन ग्रीन लाइन. सो आप यहाँ देख सकते हो कि 200 डे के EMA पे इट्स टेकन सपोर्ट. यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और फिर यहाँ पे रिसेंट में सपोर्ट लिया था. 200 डे EMA पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे. एंड मीनवाइल आप ये भी देख सकते हो, ऑल्सो यू कैन सी दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज it had taken support like this, like here, like in this range, here. So earlier it was taking support near 17,000. Earlier it was taking support near 50 days exponential moving average. So this line is acting as resistance now. So what's the immediate resistance? So as per exponential moving average, as per 50 days exponential moving average, 17,347 is the next immediate resistance. So Nifty spot needs to close above. Nifty spot needs to close above 17,347 for 2 consecutive days. ये लेवल चेंज होते रहेगा. दिस लेवल्स विल कीप चेंजिंग एज निफ्टी लेवल्स विल चेंज. जैसे जैसे निफ्टी का लेवल चेंज होगा ये लेवल भी चेंज होते जाएंगे. तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करना. If you are liking the video, please do like the video. And you can see कि 50 days exponential moving average and 200 days exponential moving average continue कैसे support और resistance ले रहा था. So as per 50 days exponential moving average, 17,347 is immediate resistance. If we close above 17,347 for 2 consecutive days, then only we can see the higher possible level in coming days. Okay, now we will check Nifty on shorter duration. So as per shorter duration, we will take a horizontal line from here, and after taking the horizontal line we can find this is the next immediate resistance, and after that next immediate resistance comes around this level. How I had find this, ये level मैंने कैसे निकाला. आप देखो ये वाली लाइन पे यहाँ पे देखो, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इसने पहले यहाँ सपोर्ट लिया था और एक यहाँ रेजिस्टेंस लिया था. ये खाली जस्ट वन कैंडल विथ आउटसाइड विक इज आउट. सो 17,300 to 17,400 इज नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल. सो ऑन स्पॉट निफ्टी 17,300 to 17,400 is next immediate hurdle on spot Nifty. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ डू कमेंट आप ज़रूर करना कि वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में बनाऊं या अपना हिंदी वाला जो लैंग्वेज है वही ज़्यादा कंफर्टेबल है. इवन मैं भी उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, बट काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने कोशिश की कि आई शुड ट्राई इन इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ हिंदी समझ में नहीं आती है, जबकि मैं तो बोलता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि हिंदी में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ एंड मैं कोशिश वही करूँगा. लेकिन आज जस्ट एक ट्राई करके देख रहा हूँ कि वीडियो कैसा रहता है और आप सबको कैसा पसंद आता है. पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना. इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ट, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट that you want next video in English or Hindi. Language is not an constant, but मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों की बताने की. नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी का 1 ईयर का डेली चार्ट अपने देखेंगे ना. बैंक निफ्टी 1 ईयर डेली चार्ट इफ यू विल सी सिंपल 200 डेज मूविंग एवरेज, if we can see 2 years chart, we can see
200 days moving average earlier acted as a resistance, then it taken support there, again it taken support there. After the support had been broken, ये support जब से टूटा है, then it's acting as a resistance. So till the time Bank Nifty doesn't close above 35,708 for 2 consecutive days, Bank Nifty trend will not change. जब तक बैंक निफ्टी दो क्लोजिंग स्पॉट की 35,708 के ऊपर ना दे दे, तब तक बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी चेंज नहीं होगा, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. सो एज पर मैं लिख भी देता हूँ, एज पर 200 EMA बैंक निफ्टी स्पॉट्स needs 2 consecutive close above 35,700 levels. This levels will keep changing. ये लेवल चेंज होते रहेंगे क्योंकि डेली बैंक निफ्टी का प्राइस चेंज होगा. सो आप अपडेट करके देखते रहना. ओके, ये तो बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड कब चेंज होगा, हाउ ट्रेंड विल चेंज इन बैंक निफ्टी. और अगर इफ़ वी कम टू डेली एनालिसिस, सो वी विल सी 3 months डेली चार्ट हेयर ऑन बैंक निफ्टी. वी विल टेक एन हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हेयर एंड वी विल ड्रॉ इट हेयर. तो अपने को क्या समझ में आ रहा है, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज अर्लियर इट यूज टू टेक सपोर्ट हेयर. पहले यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, जैसे ही सपोर्ट ब्रीच हुआ उसके बाद आप देखो, once the support get broken, it's acting as the resistance at this level. So what's that level? Bank Nifty immediate resistance 35,600. So Bank Nifty spot immediate hurdle at the rate 35,600 levels. ठीक है. और जहाँ तक बात रही सपोर्ट की, इफ़ वी वांट टू नो द सपोर्ट, सो बैंक निफ्टी स्पॉट सपोर्ट इज कमिंग अराउंड 33,800 लेवल्स. सो बैंक निफ्टी स्पॉट 33,800 इज़ वेरी फार फ्रॉम टूडेज क्लोजिंग. सो इमीडिएट सपोर्ट इफ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, सो इमीडिएट सपोर्ट it will come around 35,000 levels. 35,000 levels, 34,800 to 35,000 levels is immediate resistance. Now let's come to the stock. अब अपने स्टॉक पे आते हैं, कौन से स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा था और आपको एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बताने जा रहा था कि ये स्टॉक किस तरह बिहेव कर रहा है. सो स्टॉक नेम इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. यहाँ पे आप चार्ट में डेली कर देना, रेंज में डेली कर देना, एंड पीरियड को आप अगर 9 months रखो. नाउ सी द मैजिक ऑफ 20 EMA, 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैजिक आप यहाँ देखना, ये किस तरह काम आ रहा है यहाँ पे. सो चेक आउट हियर. यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज की, एक कैंडल से ज़्यादा कभी क्लोज ऊपर नहीं हुआ, नॉट इवन ओनली a single candle close about 20 days exponential moving average. Now acted here as support, acted here as support, again acted here as support, again once the resistance broken, only making 2 candle, but again went down. Now it's acting as a resistance. So the levels come around 2390 and today close was 2398. So technically Reliance had given one closing above 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. टेक्निकली अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक क्लोज तो दे दिया है 2390 के ऊपर. अब अगर कल भी क्लोज देता है तो नेक्स्ट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का, नेक्स्ट इमीडिएट, दिस विल बी द नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस. मीन्स दिस कैंडल हाई, 2415. इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज crosses 2415, then it can go towards 2450 and 2500. So I just want to say, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज
पहले 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना उस पर बहुत वंडरफुली काम करता है। पहले जहाँ सपोर्ट ले रहा था फिर वहाँ अभी रेजिस्टेंस लेने लग गया। आज इसने एक क्लोजिंग दी है, अब एक और कल की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो क्लोजिंग है वो 2415 के ऊपर आई है कि नहीं। अगर क्लोजिंग विल बी अबव 2415 तो आप ध्यान रखना, तो रिलायंस विल बी मूविंग टूवर्ड्स 2455 एंड 2500। तो कोई बाइंग या सेलिंग सजेशन नहीं है, इट्स नॉट एन बाइंग और सेलिंग सजेशन। आई जस्ट वांट टू से एंड डिस्कस अबाउट exponential moving average, how it 20 days exponential moving average works out in Reliance Industries. Okay, so videos I just want to say कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया till now, if you haven't subscribed for the channel, press the subscribe button and press bell icon to get all notification. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, एज जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू डोंट मिस एनी वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, वीडियो जस्ट हैव वन डिस्क्लेमर, वट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन वीडियो इट्स नॉट इन बाइंग और सेलिंग सजेशन, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। फॉर एनी ट्रेड्स यू टेक, मी एंड माई चैनल वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। हैव ए गुड डे, आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए।